ارتقاء کے شواہد۔ حیاتیاتی ارتقاء کا نظریہ زندگی کے بارے میں دو بہت واضح پیش گوئیاں کرتا ہے۔ پہلی پیش گوئی یہ ہے کہ تمام جانور ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں اور تمام جانوروں کا جد امجد ایک ہی یک خلوی جانور تھا۔ دوسری پیش گوئی یہ ہے کہ حیات کا ارتقاء فطری چناؤ سے ہوتا ہے۔ ان دونوں پیش گوئیوں کو مشاہدات سے پرکھا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان دو پیش گوئیوں کے درست ہونے کے کیا شواہد ہیں؟ تو بات یوں ہے کہ ارتقاء کے شواہد اتنے زیادہ ہیں اور اتنے مختلف میدانوں میں ہیں کہ ان پر بات کرنے کے لیے ہمیں ان شواہد کو کچھ زمروں یعنی کیٹیگریز میں تقسیم کرنا ہوگا۔ تو آئیے ہم پہلے اس دعوے پر غور کرتے ہیں کہ تمام جانور ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ اس وقت دنیا میں جانوروں کی 87 لاکھ انواع یعنی اسپیشیز ہیں۔ اتنے زیادہ جانوروں پر ایک ساتھ تو بحث نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم زندگی کے درخت کی صرف ایک شاخ پر نظر ڈالتے ہیں، جنہیں سمندری ممالیہ جانور یا سیٹیشنز کہا جاتا ہے۔ اس شاخ میں ویل، ڈالفن اور پورپس شامل ہیں۔ ماہرین حیاتیات کا دعویٰ ہے کہ یہ تمام جانور ایک دوسرے کے بہت نزدیکی رشتہ دار ہیں اور یہ تمام کے تمام زمین پر بسنے والے ایک ممالیہ جانور سے ارتقاء پذیر ہوئے۔ بجائے اس کے کہ ہم ان ماہرین کے دعووں کو بلا سوچے سمجھے تسلیم کر لیں، آئیے کچھ حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تقابلی علم الاعضاء یعنی کمپیریٹیو اناٹومی کو لیتے ہیں، جس میں جانوروں کی جسمانی ساخت کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ ویل پانی میں رہتی ہے اور بادی نظر میں دوسری مچھلیوں کی طرح ایک بڑی مچھلی نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے جسم پر غور کریں تو آپ کو مچھلیوں میں اور ویل میں کچھ فرق نظر آئیں گے۔ مچھلیوں کے برعکس ویل کی مادہ میں آنول یعنی پلاسنٹا ہوتا ہے، وہ عرضی جانوروں کی طرح بچے دیتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ مچھلیاں اپنی دم کو دائیں بائیں ہلاتی ہیں جبکہ ویل اپنی دم کو اوپر نیچے ہلاتی ہے۔ ویل کے جسم کا درجہ حرارت مستقل رہتا ہے اور ماحول کے ساتھ ساتھ تبدیل نہیں ہوتا، جبکہ مچھلیوں میں ایسا نہیں ہے۔ ویل کے گل پھڑے نہیں ہوتے بلکہ دو پھیپھڑے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے میملز کی طرح سانس لیتی ہے۔ اگرچہ ویل کا دوسرے میملز کی طرح ناک نہیں ہوتا بلکہ اس کے سر کے اوپر ایک سوراخ ہوتا ہے جسے بلو ہول کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے ویل سانس لیتی ہے۔ ویل کے کچھ انواع میں تو سر پر دو سوراخ بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں کسی بھی اور میمل کے نتنوں کی طرح ہوتے ہیں، البتہ ڈالفن اور پورپس کے سر میں ایک ہی سوراخ ہوتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر آپ مردہ ڈالفن یا ویل کی کھوپڑی کا معائنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ سر میں باہر سے بلو ہول ایک ہی سوراخ نظر آتا ہے، لیکن سر کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ تنفس کے دو راستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ بلو ہول ناک کی ہی ارتقاء یافتہ شکل ہے؟ دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ہمیں مزید شواہد چاہیے۔ زمینی جانوروں کی طرح ویل کے جسم پر بھی بال ہوتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ گرے ویل کے اس بچے کے سر پر بال دیکھ سکتے ہیں جس نے اپنی ماں کی پیٹھ پر ٹھوڑی رکھی ہوئی ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ویل کے اگلے فلیپرز کے اندر بازو، کلائی، ہاتھ اور انگلیوں کی ہڈیاں صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ رہا ان ہڈیوں کا ایک خاکہ۔ یہ وہی ہڈیاں ہیں جو چمگادڑوں، دریائی گھوڑوں اور انسانوں کے جسمانی اعضاء میں پائی جاتی ہیں۔ ان تمام جانوروں میں بازوؤں کی ایک ہڈی کے آگے دو ہڈیاں ہوتی ہیں، جس کے بعد کلائی کی ہڈی اور انگلیوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ جدید ویل میں پچھلی ٹانگیں تو نہیں ہیں، لیکن ان میں کولے کی ہڈیاں موجود ہیں اور ان کے جوڑ اسی قسم کے ہیں جس قسم کے باقی ممالیہ جانوروں کے کولے کی ہڈیوں میں ہوتے ہیں۔ ایک بو ہیڈ ویل کے جسم کے خاکے میں ناکارہ ہڈیاں بخوبی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان ہڈیوں کی ساخت کسی کمزور جانور کے کولے، ران اور پنڈلی کی ہڈیوں جیسی ہے، اور ان میں ایک ناکارہ بال اینڈ ساکٹ جوڑ بھی دیکھا جا سکتا ہے جو آپ کے جسم میں موجود کولے کے جوڑ کے مشابہ ہے۔ کیا ان ناکارہ ہڈیوں کا وجود محض ایک اتفاق ہے یا یہ واقعی ٹانگوں کی ہڈیاں ہیں جو اب استعمال نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ ویل کی ارتقائی تاریخ کے باقیات ہیں؟ کوئی نتیجہ نکالنے سے پہلے آئیے ارتقاء کے شواہد کے ایک اور پہلو پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایمبریولوجی یا علم الجنین اس بات پر تحقیق کرتا ہے کہ پیدائش سے پہلے انڈے یا رحم مادر میں بچے کی نشوونما کیسے ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم انسان اور ڈالفن کے جنین کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں جو اپنی نشوونما کے تقریباً ایک جیسے مرحلے پر ہیں۔ غور فرمائیے کہ دونوں جنین کے جسم پر کچھ ابھار ہیں جہاں سے بازو اور ٹانگیں نمودار ہوتی ہیں۔ انسان کے جنین میں یہ ابھار ٹانگوں کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ ویل کے جنین میں یہ ابھار ایک حد تک بڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی نشوونما رک جاتی ہے اور وہ دوبارہ معدوم ہونے لگتے ہیں، جبکہ باقی جسم کی نشوونما تیزی سے ہونے لگتی ہے۔ یہ تصویریں ڈالفن کے جنین کے مختلف مراحل کی ہیں۔ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شروع میں اس کے چہرے کے سامنے ناک کے دو نتنوں کے سوراخ نظر آتے ہیں۔
जैसे कि किसी और मैमल या इंसान के बच्चों में होता है। लेकिन डॉल्फिन के जनीन में वक्त गुजरने के साथ साथ ये सुराख सर की तरफ सरकने लगते हैं और दोनों सुराख मिलकर डॉल्फिन का ब्लो होल बन जाते हैं। अभी तक हमने दो बिल्कुल अलग ज़राए यानी तकाबुली इल्मुल अज़ा और इल्मुल जनीन से कुछ हक़ाइक़ पर बहस की है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वेल के अजदाद किसी ज़माने में 4 टांगों वाले अर्जी जानवर थे। क्या एक तीसरे जरिए यानी फॉसिल्स का रिकॉर्ड भी हमारे ख्यालात की तस्दीक करता है? आइए देखते हैं। हम मादूम शुदा बैसिलोसॉरिड नामी वेल के 2 अनवा के बारे में जानते हैं। ये दोनों अनवा अब से 34 से 40 मिलियन साल कबल बैक वक्त मौजूद थीं। इस तस्वीर में हम इस वेल के सर का ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं। ये कोई मॉडल या सांचे का बना जाली सर नहीं है, बल्कि एक हकीकी फॉसिल शुदा हड्डियों की तस्वीर है जो कि एक खुदाई के दौरान मिली। गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि मौजूदा वेल के बरक्स इस जानवर में नथनों का सुराख सर के ऊपर नहीं है और ना ही मौजूदा अर्जी जानवरों की तरह थूथनी के सामने है, बल्कि इन दोनों के दरमियान में है। ये एक वस्ती यानी ट्रांजिशनल जानवर है जिसे बाज़-औक़ात इर्तिका के मुखालिफिन मिसिंग लिंक कहते हैं और ये जानवर नजरिया इर्तिका की पेशगोई के ऐन मुताबिक है। इस वेल के ढांचे के पिछले हिस्से में बहुत छोटी लेकिन मुकम्मल टांगे हैं जिनमें कूल्हे के जोड़ के अलावा टांग, टखने और पाँव की हड्डियां हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि इसके पंजे भी थे, अगरचे हमें इसके पंजे की हड्डियों का सिर्फ एक ही टुकड़ा मिल पाया है। ये टांगे इतनी छोटी हैं कि इतने बड़े जिस्म के जानवर के लिए इनका जमीन पर इस्तेमाल नामुमकिन है, लेकिन गालिबन इन्हें खारिज करने या जिनसी अमल के दौरान अपने साथी को जकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नजरिया इर्तिका की एक पेशगोई ये भी है कि हम वक्त में जितना पीछे जाएं इतना ही इन जानवरों और अर्जी जानवरों में फर्क कम होता जाएगा। तो आइए आपका तारुफ मायासेटिस नामी जानवर से करवाएं। साइंसदानों के पास इस जानवर के बहुत से मुकम्मल ढांचे मौजूद हैं, जिनमें से एक तो हामला मादा का भी है, जिसके ढांचे के अंदर इसके नौमौलूद बच्चे का ढांचा भी मौजूद है। इस जानवर की हड्डियों का तजसिया हमें ये बतलाता है कि ये जानवर जमीन पर चलता था, लेकिन ऐसी बहुत सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर इस जानवर को वेल कहना ज्यादा मुनासिब है। इस जानवर के अब तक जितने ढांचे दरियाफ्त हुए हैं वो तमाम के तमाम समंदरी जानवरों के ढांचों के साथ दरियाफ्त हुए हैं। इनकी छोटी छोटी टांगे लेकिन लंबी उंगलियां और पाँव के लंबे पंजे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये जानवर अपना ज्यादा वक्त पानी में ही गुजारता था और इनके हाथ और पाँव की उंगलियों के दरमियान झिल्ली थी, जैसे कि बत्तख के पाँव में होती है और बत्तख को तैरने में मदद देती है। ये मायासेटिस के जबड़े और खोपड़ी के निचले हिस्से की तस्वीर है जो एक खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुए। इसके दांत इसी वेल की तरह है जिसकी तस्वीर हमने पहले देखी थी। इसके अलावा इसके कानों की दरमियानी हड्डियों की मखसूस बनावट और इसके जबड़े के पीछे की गोल हड्डी भी बैसिलोसॉरिड वेल और जदीद वेल से मिलती जुलती हैं। दूसरे अल्फाज में मायासेटिस एक चलने वाली वेल थी। वेल से मिलते जुलते जानवरों के और भी बहुत से फॉसिल्स दरियाफ्त किए जा चुके हैं और नित नए फॉसिल्स की दरियाफ्त का काम अब भी जारी है। इन तमाम फॉसिल्स को मजमूई तौर पर देखें तो अर्जी चौपायों और समंदरी वेल के दरमियान कोई मिसिंग लिंक नहीं रह जाता, जिससे वाज़ेह होता है कि वेल अर्जी जानवरों से ही इर्तिका पजीर हुई। अब हम आते हैं शवाहिद की चौथी किस्म यानी डीएनए पर। डीएनए एक तरह से जिंदा जानवर बनाने का नुस्खा है। हम बगैर हड्डियों, जेनीन या जिस्मानी साख्त के तकाबुली जायजे के महज डीएनए के तकाबुली जायजे से ही ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा जानवर किस जानवर का करीबी रिश्तेदार है। वेल के डीएनए का दूसरे कई जानवरों के डीएनए से मुवाजना किया जा चुका है, जिनमें मछली, समंदरी गाय और कई दूसरे समंदरी और अर्जी जानवर शामिल हैं। इनमें दरियाई घोड़े का डीएनए वेल के नजदीक तरीन पाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वेल का इर्तिका दरियाई घोड़े से हुआ, बल्कि ये है कि अब से 54 मिलियन साल पहले वेल और दरियाई घोड़े के अजदाद मुश्तरक थे। इन दोनों जानवरों के डीएनए का इस कदर मुश्तरक होना साइंसदानों के लिए इंतहाई हैरतनाक था। वेल एक दरिंदा है जो मछलियां और खोलदार जानवर मसलन झींगे खाती है, जबकि दरियाई घोड़े घास खाते हैं। इस दरियाफ्त के बाद साइंसदानों ने इन दोनों जानवरों की जिस्मानी साख्त का तफसीली तज्जिया किया तो इन पर यह आश्कार हुआ कि इन दोनों जानवरों में बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं जो कि इन्हें गालिबन इनके मुश्तरका अजदाद से विरासत में मिली हैं। वेल के इन अजदाद में जो कि चलने फिरने के काबिल थे, टखने की हड्डी की एक मखसूस साख्त थी जो कि दरियाई घोड़ों में भी पाई जाती है। वेल की तरह दरियाई घोड़े की मादा भी पानी के अंदर बच्चों को जन्म देती है और इन्हें दूध पिलाती है। इनके मेदों के कई हिस्से हैं जो घास चरने वाले जानवरों में आम मिलते हैं।
लेकिन दरिंदों और मछली खाने वाले दूसरे मैमल्स में नहीं मिलते। दोनों के जिस्म पर कोई फर नहीं है। इसके अलावा व्हेल और दरियाई घोड़े इन चंद गिने चुने मैमल्स में से हैं जिनके नर के खसिये जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने कई मुख्तलिफ नुक्ता हाय नज़र से देखा कि दर्जनों ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो इस बात की दलील हैं कि व्हेल का इर्तिका अर्जी चौपायों से हुआ। लेकिन सिर्फ एक व्हेल के इर्तिका की कहानी ही ऐसी नहीं है जिसके बारे में हम इतनी तफसील से जानते हैं। मिसाल के तौर पर फॉसिल्स, DNA, इल्म जनीन और ऐसे बहुत से उलूम से ये वाज़ेह है कि परिंदों के पर भी बाजू और पंजों की इर्तिका याफ्ता शक्ल है। परिंदों का इर्तिका डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों से हुआ था। इसी तरह ये भी वाज़ेह है कि चमगादड़ के परों का इर्तिका भी 5 उंगलियों वाले हाथों से हुआ जो बंदरों और छछूंदर के हाथों की तरह थे। हमें ये भी इल्म है कि इंसान और चिंपैंजी के अजदाद मुश्तरक थे। ममालिया जानवरों का इर्तिका रेंगने वाले जानवरों से हुआ। इन रेंगने वाले जानवरों का इर्तिका एम्फिबियंस से हुआ जो खुश्की और पानी दोनों में रह सकते थे, और इन एम्फिबियंस का इर्तिका मछली जैसे जानवरों से हुआ। इसी तरह अगर हम माजी में चलते जाएं तो ये मालूम होता है कि इन मछली जैसे जानवरों और कीड़ों के अजदाद भी मुश्तरक थे। इस तमाम बहस से जाहिर होता है कि नज़रिया इर्तिका के लाखों शवाहिद हैं जो बहुत से मुख्तलिफ इल्मी मैदानों के माहिरीन ने आज़ादाना तौर पर इकट्ठे किए हैं, और ये तमाम शवाहिद हमें एक ही बात बतलाते हैं कि तमाम जानवर एक दूसरे से किसी न किसी अजदाद के इश्तराक की वजह से एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए विजिट कीजिए ScienceKiDunia.com।